presentation. So now we have Vishnu. He's going to make a presentation today. Yes, Vishnu, you can start your presentation. मैम आप देख लीजिए, मैं सर बोल नहीं पाऊंगा कि मैं मार्केट में हूँ मैम। तो शेयर कर दो स्क्रीन। हाँ, शेयर करो स्क्रीन पर। All right, start. About Jawaharlal Nehru. Yes, start. Hello. Hello. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, start. बोलो आवाज आ रही है? Yeah. पंडित जवाहरलाल नेहरू मैम, स्क्रीन दिख रही है? Yeah. ओके मैम। पंडित Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India, and he was born on 14th November 1889, and his death day is 27th May 1964. He was an Indian independence activist. His birthplace: he was born on Prayagraj, also called Prayag, formerly Allahabad city, southern Uttar Pradesh state, northern India. Northern. Yes, sir, northern India. And his parents' name is Swarupa Rani Nehru, and Motilal Nehru is his father. And, his mother name is Swarup Rani Nehru, Jawaharlal Nehru's mother. His mother's Wife's name. His is- father's name. His mother's name. Mother's. name. Jawaharlal Nehru had married Kamala Kaur Nehru on 8th February 1916. And Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of independent India in 1947 to 1964, who established parliamentary government and became noted for his neutralist, non-aligned politics in foreign affairs. He was also one of the principal leaders of Indian independence movement in 1930s and 40s. He was born and great and also achieved greatness by his vision, hard labor, sincerity, honesty, patriotism, and great intellectual powers. His education and backgrounds are: he received his early education at home under private tutors. Nehru was a graduate of Trinity College, Cambridge, where he trained to be a barrister upon his return to India. Why he known as Chacha Nehru? We celebrate Children's Day all across India on our 14th November every year. On this day, India Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was born. He was also called Chacha Nehru because of his love of children. Jawaharlal Nehru, who due to his love for children, was fondly called Chacha Nehru. Why did Jawaharlal Nehru pin red rose on his foot? Jawaharlal Nehru pinned a fresh red rose to his foot every day as a reminder of his life with his wife, Mrs. Kamala Nehru, who passed away in 1938 after a prolonged illness. Time is not measured by passing of year, but by what one does, what one By feels, what and one what does. does. By By what one does, does. what one feels, and what one achieves. Failure comes only when we forget our ideals Failure. and objectives. Failure comes only. Failure. Failure comes comes only when we forget our ideals and objectives and principles. Failure comes only when we forget our ideals, objectives, and principles. And it is said by Jawaharlal Nehru, ignorance is always afraid of change.
The children of today will make the India of tomorrow, and the way we bring them up will determine the future of the country. What we really are matters more than think what other people think of us. Thank you. Thank you very much. All right. That's all, ma'am. Okay, that was good. That's all, ma'am. Okay. It is good that people are making presentations, and Vishnu, it was a well tried attempt. The attempt was good, and Thank you, ma'am. everybody should take the initiative. Like follow the rules and regulations. Be in a disciplined manner. When you were given an assignment, you have to think about it. No, Yes, ma'am. Very sorry, ma'am. that's okay. So it is always good, and students are always remembered and praised for the work that they have done, and you will feel good. You will feel good that yes, you've done something today. Yes, ma'am. All Very right, sorry, ma'am. Give me just one chance, ma'am. that's We okay. also done that. Yeah, we Yes, will ma'am. also do that. Yes, yes. We will also do that. Okay. Yes. All right. Today, what are we discussing? Should we take up another essay? We already have finished India again, and we have finished life's philosophy. So, should we proceed to the other essay? What do you say? On being a bore, ma'am. Yeah. Okay. All right. Students, please keep yourself mute. And if you want to ask me anything, you can unmute yourself and raise your hands. So let us start today with On Being a Bore, which is an essay written by Robert Lind. Sorry. One minute. It is taking too long to open anyways. Let's see. Sometimes the files take a little long to open. Somehow. Okay. All right. So this is the first slide, On Being a Bore, written by Robert Lind. What do you understand by the title, On Being a Bore? We would like to tell you about the author, like Robert Lind. Robert Lind was a writer. He used to write essays, columns, in the newspaper. And he was one person who used to write about whatever he experienced in life. He used to observe people, he used to observe situations, and he used to write essays on the basis of his observation. So वो
अपने तजुर्बे पे वो लिखा करते थे, सोसाइटी को स्टडी करते थे, लोगों को स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे और उसके आधार पे वो लिखते थे। और उनका जो राइटिंग स्टाइल था ह्यूमरस था। ह्यूमरस मतलब कि उनका एसेज पढ़ के लोग खुश होते थे, एंटरटेन्ड होते थे और उनके एसेज में ह्यूमर हुआ करता था। सीरियस बात भी कहे जाते थे लेकिन हंसते हंसते कुछ कहते थे कि किसी को बुरा भी नहीं लगता था। और एक सटायर भी था, एक कटाक्ष सोसाइटी पे हुआ करता था। So about the author Robert Lind. Robert Lind was an Anglo-Irish writer, editor of poetry, literary essayist, and strong Irish nationalist. And he was born on 20th of April 1879 at Belfast, United Kingdom, and he died on 6th of October 1949 at Hampstead, London, United Kingdom. And his education was at Royal Belfast Academical Institution and Queen's University, Belfast, and nationality was British Irish. No, Irish, ma'am. Israel, from Israel or Ireland, not Ireland. Israel. Yeah. So, what are the works that he did? So, he was also the editor of a newspaper, and he was writing one column every week. And these columns were always for entertainment and humorous. पढ़ के लोग हंसते थे, खुश होते थे, एंटरटेन्ड होते थे। सोसाइटी पर भी कमेंट होता था, कटाक्ष होता था। जैसे द प्रेजेंट ऐसे ऑन बीइंग अ बोर, उनका कहना था कि कुछ भी बनो लेकिन किसी के लिए बोर मत बनो, डू नॉट बी बोर योरसेल्फ। और इतना ज्यादा भी बोर मत बनो कि तुमको लोग ह्यूमन बॉम्ब बोर बना दे, कि तुमको देखते ही लोग भाग खड़े हों कि अब वो देखो वो आ रहा है, ह्यूमन बोर। तो बॉम्ब बोर तो एक कटाक्ष सोसाइटी में, पर्टिकुलर इस ऐसे में वो लिखते हैं कई तरह के बोर्स होते हैं सोसाइटी में। तो whatever he describes are the various types of bores you find in society. कोई बहुत बोलने वाला बोर होता है, कोई नहीं बोलने वाला बोर होता है, कोई अपनी ही बात करने वाला बोर होता है, कोई बिना मांगे एडवाइस देता है, कोई बिना मांगे रास्ता बता रहा है, रूट बता रहा है। तो तरह तरह के बोर्स होते हैं। चाइल्डहुड बोर्स होते हैं, बच्चे का भी बहुत बोर होते हैं, तो बच्चों के द्वारा आप बहुत बोर होते हैं। और ये राइटर ने कहा है कि जब वो छोटे थे तो वो भी बहुत बड़े बॉम्ब बोर थे। तो इस तरह का कई तरह के बोर्स होते हैं। द ऑथर इज ओनली डीलिंग विद द काइंड्स ऑफ बोर्स इन सोसाइटी। ओके, और लेट अस टॉक अबाउट हिज वर्क। उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो उनका जो वर्क है द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, मतलब द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, कुछ नहीं जानने में जो प्लेजर है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, कुछ जानते नहीं है तो खुश रहते हैं। तो नहीं जानने में भी एक बहुत मजा आता है, कुछ पता नहीं। हर बात के लिए अगर नहीं पता है, कुछ पूछो आई डोंट नो, तो अपनी एक दुनिया में रहते हैं। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, कुछ नहीं जानेंगे तो प्लेजर स्टेट होता है, प्लेजर स्टेट ऑफ माइंड। सेकेंड आप बुलेट में देख रहे हैं, आई ट्रेम्बल टू थिंक, मतलब सोचने से भी मैं कांप जाता हूँ। ट्रेम्बल, आई ट्रेम्बल टू थिंक। And then he wrote on old and new masters, पुराने और नए मालिक। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा पुराने जो मालिक हुआ करते थे, मास्टर्स हुआ करते थे, what were they like and what are the new masters like। और एसेज की उन्होंने बुक लिखी थी, compiled in a book, The Little Angel। The full name of Robert Wilson Lind occupies a prominent place among first rank of essays till date।
मतलब फर्स्ट रैंक में उनको गिना जाता है. ये वाज अ वेल नोन रिनोन्ड राइटर, एंड फर्स्ट रैंक में अभी तक टिल डेट he is counted among the first rank. After completing his education, he became a journalist as well. So he was a journalist, he became a journalist, and he was the editor of the Daily News, the newspaper, Daily News. He was the editor, and he used to write an essay every week for the New Statesman. And he was writing every week one essay for the New Statesman under the pseudonym YY. What is the meaning of pseudonym? सामान्य नेम. हाँ, सामान्य नहीं. वो अपना नाम रॉबर्ट लेड नहीं लिख करके वो वाई वाई के नाम से लिखते थे. ठीक है. Ma'am, what is the meaning of statesman? That is the name of the newspaper. Okay, ma'am. The New Statesman is a newspaper, and he was writing one column every week. और कौन से नाम से लिख रहे थे? Not Robert Lind, as YY. Pseudonym is something where you hide your name and you hide your name and use something else. Ma'am, it's like a false name. Yeah. False name. हाँ, पेन नेम भी कहा जा सकता है, राइटर्स नेम भी कहा जा सकता है. Many people use their pen names. The essay. As I already told you, the writer has researched people, the society, and he has found that there are so many types of bores. So why not write something on the types of bores in society? And since it was his idea, because he was very humorous in his writing, his style was humorous, and he wanted to entertain people. तो उन्होंने लिखा कितने तरह के बोर्स सोसाइटी में होते हैं उनके बारे में, and he deals it in a detailed manner. The idea expressed in the given essay is very humorous, हंसाने वाला. एक तरफ तो ह्यूमरस है और दूसरी तरफ से सटारिकल है. एक तरफ तो आपको हंसा रहा है और दूसरी तरफ एक कटाक्ष कर रहा है सोसाइटी पे. The essay is reflections based on people's ideas and preoccupations. It means the essay is based on people's ideas. लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे कैसे लोग होते हैं. And the subject matter क्या है इस पूरे essay का? The subject matter, bores is the subject matter of the essay. The writer highlights the variety of bores in society. Number one, the writer talks about the first kind of bore. You can write it down technically so that you can answer questions. The first type of bore that he has found in society is the train bores. जो ट्रेन में सफर करते हैं, train bores. So there are a lot of people who will come and talk to you, who will try to talk to you. कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल अगर मन नहीं है, बिल्कुल आप इस टाइप के नहीं है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं. The train bores who like talking to people without realizing they might bore other passengers. जो ट्रेन में आपको मिल जाते हैं वो they like to, उनको पता रहता है कि बात करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है
उनका टाइम पास होता है, लेकिन उनको ये दे डू नॉट नो दे माइट बोर अदर पैसेंजर्स, ये दूसरे पैसेंजर्स को वो कितना बोर करते हैं। फिर वो बात करते हैं गोल्फ। नंबर 2, golf balls. So number 1 was train balls. I'm going to ask you the types of balls. So technically write these down. The second, the golf balls. आपको पता है golf is a game. Yes, So the ma'am. हाँ, No, it golf is a is game. played by hockey. हाँ या तो सपोजिंग आप गोल्फ नहीं जानते हैं, आप गोल्फ का जी भी नहीं जान रहे। मेरा आवाज जा रहा है मैम? हाँ, तो सपोजिंग आप गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ जानते हैं, और ऐसे लोग से बात कर रहे हैं जिनको गोल्फ का जी भी नहीं पता है, और आप गेम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप तो उनको बोर ही कर रहे हैं ना। जिन्होंने कभी गोल्फ बॉल देखा नहीं है उसको आप टेक्निक्स बता रहे हैं, तो आप उनको बोर ही कर रहे हैं। Number 2 was golf balls. Number 1 was train balls. Number 3, the motoring balls. Up number 3, the motoring balls. When the roads are very bad, when there's a traffic jam. तो मैम बोर्ड्स क्या है मैम? जो बोर होना होता है ना, मोटरिंग बोर्स, मोटरिंग लोग जो बोर का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं। आप भी कहते मैं बोर होना बहुत है। बोर हो गया हूँ, बोर। हाँ, Like disturbance और क्या? सेम बोर ऊब गए हैं आप। तो मोटरिंग बोर्स, तो ये वो बोर्स होते हैं जो when the roads are very bad और ट्रैफिक बहुत धीमे चलानी होती है, ट्रैफिक जैम है या बहुत स्लो चल रहे हैं बिकॉज बैड रोड्स हैं, तो ये लोग जो गाड़ी में बैठ के बोर होते रहते हैं। आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे होंगे कभी, यू माइट हैव गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, तो कैसा फीलिंग होता है आपको? बहुत बोरिंग है। बोरिंग होता है। तो जैसे 90 मिनट्स का 90 सेकेंड्स का जो 2 मिनट्स का जो स्टॉपेज होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही गाड़ी रुकी तो कौन कौन लोग आ जाते हैं, मांगने आते हैं ना, कुछ बेचने वाले आते हैं, कुछ मांगने वाले आ जाते हैं। तो आप तो बोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी तो बंद पड़ती है ना कि उनका कुछ सेलिंग हो जाए। तो यहाँ मोटरिंग रोड्स हैं जो कि बहुत बोर होते रहते हैं बैड रोड्स की वजह से, एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक, जहाँ बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो उनके लिए बहुत ही बोरिंग बात हो जाती है। बट फॉर द बेगर सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, और लेकिन जो वहाँ भिखारी जो बैठे होते हैं रोड के दोनों तरफ, उनके लिए इट बिकम्स अ बून। उनके लिए तो उनकी तो बंद पड़ती है, तो वो आके आराम से पैसे मांग लेते हैं। ठीक है, तो मोटरिंग बोर्ड समझ गया आप, जो स्लो मूविंग ट्रैफिक में जो भिखारी आपसे द बेगर्स आपसे कुछ आके मांग के ले जाते हैं, तो आप भी ऊब के दे ही देते हैं, चलो चलो जाओ भाई, तो उनके लिए तो बात बन जाती है। लेकिन जो बैठे हैं गाड़ी में जो बोर हो रहे हैं, उनके लिए तो खैर इट्स वेरी बोरिंग। फिर नेक्स्ट बोर है द पॉलिटिकल बोर्स हु टॉक ऑफ नथिंग बट पॉलिटिक्स। तो ऐसे भी पॉलिटिकल बोर्स होते हैं जो कि दे ओनली टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आपको इंटरेस्ट है नहीं है, अगर है भी तो आप 24/7 पॉलिटिक्स नहीं बात कर सकते, राइट? तो पहला क्या था, ट्रेन बोर्स, सेकंड क्या था, गोल्फ बोर्स, थर्ड क्या था, मोटरिंग बोर्स, फोर्थ क्या, पॉलिटिकल बोर्स, फिफ्थ है द वन वे बोर्स। अब ये कौन लोग होते हैं? वन वे बोर्स वो होते हैं जो एक बंदा बात कर रहा होता है, when one person is talking and only he is talking, और वो किसी को मौका नहीं मिलता है, he does not give opportunity for anybody else to talk, और वन वे, बस ट्रैफिक एक ही रास्ता चल रहा है, वन वे ट्रैफिक है भाई,
वो बोले जा रहा है, और जो उनके साथ हैं वो तो बहुत बड़े सोच रहे हैं आप आज किसका मुंह देके उठे, आज बोर ही होना है। बाद में क्या करेंगे जब इस बंदे को देखेंगे, भाग खड़े होंगे कि बाप रे बहुत बड़ा बोर है, भाग चलो यहाँ से। तो वन वे बोर, द पर्सन हु डज नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू टॉक, वो खुद बात करता है। एंड देन द टू वे बोर्स। अब देखिए टू वे बोर्स क्या होता है। नंबर 6, अब इसको समझिए टू वे बोर्स कैसे। जब दो आदमी मिल रहे हैं तो बोर कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इसलिए ये दो बंदे जो मिल रहे हैं, जो टू फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इनके पास बहुत बातें करने को होती है, और कुछ समय तक तो इतनी बातें करते हैं लोग, पूरा खजाना खाली हो जाता है। इतनी बातें करते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। और कुछ समय के बाद दोनों के पास कोई टॉपिक तो बचती नहीं है, पूरी कहानी सुन ली है, कह ली है। अब क्या होता है, अब दोनों एक दूसरे को बोर करते हैं। आफ्टर सम टाइम both of them started boring each other, the two-way bores, huh? Now the childhood bores. अब चाइल्डहुड बोर्स क्या होता है? कभी कभी बच्चे बहुत बोर होते हैं, बच्चे बहुत बोर करते भी हैं, तरह तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों नहीं। खास करके जब आप कोई किसी काम में बिजी हैं, कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, कुछ वेब डेवलप कर रहे हैं, तो फिर ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो यू आर बोर्ड। अब यहाँ द चाइल्डहुड बोर में राइटर अपने बारे में कहते हैं कि जब वो छोटे थे, 10-11 साल के थे, when he was 11-12 years old, there was one uncle who was coming to him all the time. एक उनके अंकल थे जो बगल में रहते थे और वो आया करते थे। अब जब भी ये अंकल आते थे तो वो उनसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करते। अब वो फलाने अंकल ने आना है कि उनको सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है। अब ये बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, सुन रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, डे इन एंड डे आउट, एवरी डे सेम टॉपिक, सेम अंकल, सेम फेस, सेम टोन, सेम लैंग्वेज। बच्चा सोचा कि आज तो पता चलाएंगे इसको। फिर उन्हें एक प्लान बनाई, रॉबर्ट लिंड ने एक प्लान बनाया, इनको आज हम बता देते हैं कि बोर होना क्या होता है। तो जैसे ही ये वहां पहुंचे, वही चेहरा, वही फेस, वही टोन शुरू करने वाले थे, तो उसने कहा अंकल लेट्स गो आउट, लेट्स टेक अ वॉक। हाँ ये तो कोई नई बात हो गई। तो अंकल ने कहा हाँ चलो बाहर, ओके लेट्स गो। जब बाहर निकलते हैं रॉबर्ट लिंड, बच्चे रॉबर्ट लिंड और अपने अंकल जी के साथ, तो उनके कानों के पास हम चिल्ला चिल्ला के शुरू करते हैं बात, कमेंट्री कर रहे वो, जैसे टूरिस्ट गाइड करते हैं ना। अब ये बिल्डिंग देखिए, अब ये रोड देखिए किसने बनाया है, कोई भी मन गढ़ंत नाम। अब ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, अब ये पेड़ जो सामने आप देख रहे हैं, और उनका टोन, उसका टोन था वो इतने चिल्ला, ही वाज शाउटिंग। और उनके कान के पास आकर के, नाउ अंकल लुक एट दिस ट्री, this tree was planted by this person, this building was made by this person, and see that building over there. अब उनका तो बर्दाश्त के बाहर जब हो गया, तो दोनों हाथ से अपना कान को ऐसे किए, अब बोले माय गॉड यू आर सच अ बिग बोर। उसके बाद से अंकल का आना बंद ही हो गया, और ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो बहुत अच्छे से वो बोलते हैं रॉबर्ट लिंड कि वैसे ही अंकल ने तो नहीं, उन्होंने कहा माय गॉड यू आर सच अ बिग बोर। लेकिन रॉबर्ट लिंड याद करते हैं कि जब मैं छोटा था
तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, रॉबर्ट यू आर अ बॉम्ब, मतलब तुम बहुत बड़े बॉम्ब हो। तो रॉबर्ट लिन ने शेयर किया अपनी एक्सपीरियंस और कहा कि चाइल्डहुड बोर में जब बात आती है तो सबसे बड़े वो अपने आप को बोलते हैं। किस तरह से उन्होंने लेसन सिखाया था अपने अंकल को, और किस तरह से लोगों ने कहा था कि रॉबर्ट यू आर अ बॉम्ब बोर, मतलब बॉम्ब बोर्ड पर तुमको देखो, तुमको मुझे देखते ही लोग भाग जाते थे। उसके बाद आता है रूट बोर्स। अब रूट बोर्स वो होते हैं जो आपसे आपसे जान पहचान भी नहीं है, लेकिन फलाने से अगर मैप देख लिया, पूछ रहा है कि चलो बताओ ये कहाँ पर है, तो आपको बिना जाने सुने, आप जानते नहीं है लेकिन आप बताते हैं रूट, ये ट्रेन ले लो, ये बस ले लो, यहाँ से वहां उतर जाओ, वहां से फिर ऑटो ले लो, ऑटो से लेके फिर बस ले लो। मतलब जाना रहे अगर बोटानिकल गार्डन तो आपको पहुंचा देगा पटना सिटी, इसलिए कि आपको आइडिया नहीं है, आपको बोलने की आदत है, आपको एडवाइस देने की आदत है। जो गलत रूट बता देते हैं और इसमें बहुत दे फील हैप्पी दैट दे आर मिस्टर नो ऑल, उनको सब पता है, तो गलत रूट बताने वाले हो गए। और लास्ट जो आप बताते हैं द वॉर पोस्ट, जब लड़ाई छिड़ती है तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल होंगे जो बताएंगे वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, फलाने जगह क्या हुआ था, तो जब उनसे मिलेंगे तो वही कहानी शुरू कर देंगे, वो वर्ल्ड वॉर की कहानी। उनके पास वही टॉपिक है, वही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग में वही एक टॉपिक बच जाता है। हाँ बस वही टॉपिक बन जाता है। आज जब मिलेंगे तो भूल जाते हैं कि मैंने ये बात तो कर चुकी है, मैंने तो कह दिया है कहानी, फिर वही शुरू हो जाता है। The war wars are all in one way or the other, may bore some or many at one time point of time or the other। तो ये वॉर बोर्स हैं या हर तरह के बोर्स जो होते हैं किसी न किसी टाइम में किसी न किसी को बोर करते रहते हैं हमेशा। यही सबका लास्ट करती है संजना। ब्रजेश प्लीज म्यूट ब्रो। Hello, stop it. So they are all illustrative of the typical bores that we come across in our daily life। और ये जब ये रॉबर्ट इन बात करते हैं तो हम लोग भी कई तरह के बोर्स से मिलते हैं, और हम लोग भी जानते हैं बहुत तरह के बोर्स इन लाइफ है, और इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। The writer makes a revelation that he himself was a childhood bore and had bored many who happened to meet him। और जैसा कि हमने पहले ही कहा, राइटर खुद बोलते हैं कि सबसे बड़े बोर तो हम भी थे बचपन में, और बहुत लोगों ने कहा है कि यू आर अ बिग बॉम्ब बोर। बहुत रिवेलेशन मतलब रिवील किया, मतलब इस राज खोला है, इस पर्दा उठाया है, रिवील किया है कि वो बचपन में बहुत बड़े बॉम्ब बोर थे। हाँ, अब देखिए पीपीटी प्रेजेंटेशन भी इसका है, आप विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, रिमाइंड मी, बट हैव यू अंडरस्टूड द लेसन? यस मैम। Okay. यस मैम। So the subject matter is bore, and the writer has talked about there are so many bores in society। आपको भी अगर ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बिग बॉम्ब बोर बता सकते हैं, you can write that also। So, या हो सकता है, anything can happen। Like बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोर करते हैं, बोलते हैं क्लास में कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो, अभी भी कैमरा ऑन नहीं है, तो दे आर बॉम्ब बोर। बॉम्बो। मतलब हाँ, बिगेस्ट बॉम्ब बोर है ना। तो आपको बॉम्ब बोर बनना है तो आप कैमरा ऑन करके बैठिए, तो हमको याद आएगा कि हाँ इन दिस क्लास देयर वर लॉट ऑफ बॉम्ब बोर्स। हाँ, I'm only joking। All right, have you all understood the lesson? yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay। Yes, ma'am।